Hare Krishna. So today I just try to explain you one important sloka from Bhagavad Gita, chapter 10, sloka number 10. By the mercy of Srila Prabhupada and my Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, whatever I have, whatever intelligence I have to understand Shastra, this is only possible because of our Acharya. Because our Acharya is so merciful, they just depicted and they just synchronize all the Shastra uh, in contemplating form and represented in a simple way, in a simple language, right? In a such a way that we can able to understand, we conditioned soul able to understand this Shastra. So I just try to explain you and solve you through this shloka. And each and every shloka of Bhagavad Gita is so powerful, so deep, so nectarian. Each and every sloka Bhagavad Gita and each and every line, each and every word of Bhagavad Gita had a different bhav, has a different bhav according to different acharya. Different acharya analyzes same sloka in different bhav, but the goal is same. Meaning is same, but the according to bhav, different acharya have a different meaning of the same sloka. So we contextualize all, only able to understand this sloka deeply by the mercy of our Guru Maharaj and by the mercy of all the acharya and Srila Prabhupada also, right? So we can able to understand the Shastras. So to firstly I want to before recite this sloka in the front of you through this virtual mode. First I want to say something that if you want to read Shastra, we should not have to read Shastra only by words. Words mean that कुछ मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसे हो, श्लोक पढ़ लिया, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. But we have to able to understand the deep meaning. Each and every word, what each and every word tells us in the deep form. When we are able to understand, because होता क्या है ना कि हम श्लोक पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं फेम के लिए. अच्छा श्लोक बोलेंगे, अच्छा लेक्चर बोलेंगे, लोग में फेम बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा. गी भाव होता है. दैट शुड नॉट आवर भाव व्हेन वी जस्ट स्ट्रॉलिंग we can say that strolling in the street our through eyes, and a street like just like a book. When you're strolling in the street of each and every pages with your eyes, राइट जब एक चीज़ को आप देख रहे होगे तो वो फील होना चाहिए. ये तब होगा जब हम अचिंत्य भेदाभेद इन द सेंस कि हम समझेंगे कि कृष्ण जिन्होंने भगवद गीता बोला है या शास्त्र बोला है, कृष्ण के बारे में जो शास्त्र में बोला गया है उनके भक्त के थ्रू या कृष्ण ने बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो कृष्ण के वाणी एंड कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कृष्ण वर्ड, कृष्ण पास्ट टाइम, कृष्ण नेम्स, कृष्ण फेम, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण हिमसेल्फ. आई एम से कृष्ण बट he is Krishna. There is no difference between Krishna name and Krishna prem and Krishna name also. Krishna और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है. This is called अचिंत्य भेदाभेद. बट अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, राइट, तो मेरे और जैसा बोलो ससांग 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 ससांग, सिरधर नारायण. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिरधर नारायण एंड मी, include me as a personality. There is a difference. But Krishna की personality, कृष्ण के name, कृष्ण के fame में there is no difference between the Krishna name, Krishna fame, right? There is no any difference between Krishna name and Krishna fame. That is called Achintya Vedanta. When you are starting reading Shastra in that bhav, then you are able to understand Krishna deeply. Then you are able to understand what Krishna say exactly. Exactly उन्होंने बोला क्या है कृष्ण ने, राइट. देन हम लोग श्लोका पढ़ते हैं, पहले बहुत ज़्यादा समय हो गया. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां येन मामुपयन्ति ते. तेषां सतत युक्तानाम, सतत युक्तानाम, what does it mean? सतत mean always और युक्तानाम means engage, always engage. एंड इसमें always engage का मतलब क्या? always engage का मतलब ये कि हम अपने बॉडी को लगाएं नहीं, always engage your existence.
योर एग्जिस्टेंस, भगवान ने तो बोल दिया सतत युक्ता नाम, इसका मतलब समझ लिया, अच्छा ठीक है, मतलब कोई इंगेज करना है, भक्ति करना है, नहीं, सतत युक्ता नाम मतलब engage yourself mean your existence mean our existence has been divided into three parts we can say. First, what you see in the front of me through this virtual mode, ये जो बॉडी है ना, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी. ये ग्रॉस बॉडी बना है रक्त, चमड़ा और हड्डी से. किससे बना है? रक्त, चमड़ा और हड्डी से बना है. ये बोन, ये आप देख स्किन देख रहे हैं, इसके नीचे बहुत सारा चमड़ा होगा, खून होगा, ब्लड होगा, और इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा मांस होगा, हड्डी होगा. तो ये ग्रॉस बॉडी है. क्या है? ग्रॉस बॉडी. उसके नीचे, चूँकि उसके नीचे क्लियर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग सबटल बॉडी, जो है द माइंड होता है, ईगो होता है. और ईगो फॉल्स ईगो है या ट्रू ईगो है फॉर कृष्णा, ये बात की बात है. लेकिन इंटेलिजेंस कैसा है? फॉल्स ईगो और माइंड, ये है सेकेंड डिवीजन. जो ये शरीर होता है, उसके नीचे से क्या होता है? फिर सबटल बॉडी होता है, माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, और उसके नीचे होता है खुद हम, आवर रियल एग्जिस्टेंस विच इज कॉल्ड सोल, आत्मा. राइट, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. तो ये तीन पार्ट है. तो तीनों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है. राइट, तीनों को लगाना है. अब इसमें सवाल है कि हम, आगे लाइन आता है, कैसे हम इंक्लूड करें, तो ये कैसे लगेगा? अपने थिंकिंग को, फीलिंग को, विलिंग को. थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. अच्छा, विलिंग मतलब इच्छाएं. तो ये जो डिज़ायर आती है, ये कैसे आती है? फर्स्ट हम थिंक करते हैं, कंटम्पलेट करते हैं. ठीक है, कंटम्पलेट करते हैं. लाइक किसी चीज़ को पहले अपनी इंद्रियां से उसको हमने क्या क्या देखा, कुछ भी गलत देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, तो पहले हम थिंक करते हैं. और थिंक करने के बाद अच्छा हमारे अंदर फील आता है कि हम उसको फील आता है. और जब फील आता है तो फिर इसके बाद क्या था? विलिंग. थिंकिंग, फीलिंग, देन विलिंग. तो जब हम थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप आपका आत्मा एंड शरीर वो लग जाएगा. क्योंकि तीनों है ना, एक दूसरे के पूरक हैं. मतलब एक को लगाओगे तो दूसरा अपने आप लगेगा. या आप शरीर से कुछ भी बिना मन से, मन नहीं कर रहा है, मन आपका नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर को लगा रहे हो तो ये अपने आप आपका मन भी लगने लगेगा और आत्मा तो लगने ही लगेगा. तो तीनों एक दूसरे के पूरक है. इस तीनों में से किसी को भी आप किसी से भी स्टार्ट करोगे, लगाना तो तीनों को है. अगर तीनों में से, मतलब ग्रॉस बॉडी, सबटल बॉडी और आत्मा, तीनों में से किसी को भी आप स्टार्ट करोगे, मतलब अगर बॉडी को लगाओगे, मन नहीं है भक्ति करने का, लेकिन बॉडी को इंक्लूड कर रहे हो, तो माइंड, सोल और माइंड, इंटेलिजेंस हमारा अपने आप भगवान की सेवा में लगने लगेगा और आत्मा फिर उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा. या आप डायरेक्टली माइंड को लगा सकते हो चैंटिंग करके. किसी को शुरू में होता है कि कोई भजनानंदी होते हैं, शुरू बचपन से इनको टेस्ट आ रहा है चैंटिंग में, तो अपने माइंड को लगाना, तो शरीर अपने आप और आत्मा अपने आप उसमें इंडल्ज हो जाता है. तो हम अपनी एग्जिस्टेंस मतलब तीनों को, क्योंकि मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, सतत युक्ता नाम, ऑलवेज इंगेज्ड, किसको? अपने आप मतलब, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को मैंने देखा है, लाइक मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये चूँकि श्लोका बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बस अपने बॉडी को लगाते हैं. 25 ईयर्स हो जाता है, 26 ईयर्स हो जाता है भक्ति करते हुए, लेकिन हमने बस बॉडी को लगाया, ऊपर से दिख रहे हैं भक्त हैं, लेकिन अंदर से कुछ बात ही नहीं है. अंदर से पूरा वही कचरा भरा हुआ है हमारे अंदर. राइट, तो वो भक्ति है ही नहीं बेसिकली. दैट इज़ नॉट अ रियल भक्ति. वो ऑलवेज आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं, फिर आपने बस फेम के लिए भक्ति करा है. अब आगे एक लाइन आता है, पहला था तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. जो प्रीतिपूर्वक भजन करोगे, इंगेज्ड होना है कैसे? प्रीतिपूर्वक भजन करके. प्रीति, अब प्रीति क्या? भोगवांछा प्रीति नहीं, भोगवांछा वाला प्रीति नहीं. हम चैंट कर रहे हैं फेम, ना धनम ना जन्म सुंदरी, कुछ भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, फेम, धनम, जन्म कुछ भी नहीं चाहिए, ना धनम, जन्म, सुंदरी कुछ भी नहीं चाहिए, ना फेम चाहिए, ना लड़की चाहिए, कुछ भी ऐसा भौतिक इच्छाएं नहीं है. तो इसको बोलते हैं भोगवांछा प्रीति. भोगवांछा प्रीति नहीं होना चाहिए हमारी जो प्रीति, भोग वाली नहीं होनी चाहिए. प्रीति का निश्चय कैसे होना चाहिए? यहाँ पर बाद में तो लिख दिया है, भजताम प्रीतिपूर्वकम. मैंने आपको इसलिए बोला था वर्ड्स नहीं पढ़ना है, हमें वर्ड्स वाइज नहीं पढ़ना है, हमें भाव समझना है. प्रीति मतलब ऐसे हो सकता है कि यार चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कौन से प्रीति? वो जो प्रीति होना चाहिए वो होना चाहिए कृष्ण के लिए. हम कर रहे हैं, किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं? कृष्ण की. कृष्ण, राधा कृष्ण को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग ये चैंट कर रहे हैं. अपने हमारा कोई इच्छा नहीं है. और जब ऐसा इच्छा ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगे, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, इसको बोलते हैं नामाभास. 3 तरह का नाम होता है. एक होता है नामापराध, नामाभास और प्रेम नाम. जो नाम अपराध होता है वो क्या होता है? बेसिकली सबको लगता है कि जो नामापराध का मतलब होता है कि आप चैंटिंग कर रहे हो और चैंटिंग में आपको कुछ इच्छाएँ हैं, इच्छाएँ के लिए आप चैंटिंग कर रहे हो.
भले हम दिखा रहे हो कि हम चैंटिंग भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो चैंटिंग इच्छाएं, आपका अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ रियल चैंटिंग, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ द नामापराध। एंड नामाभास मतलब चैंट कर रहे हो, लेकिन वो चैंट में आपको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, यू आर जस्ट ओनली चैंटिंग फॉर राधा एंड कृष्णा, टू सर्व द राधा एंड कृष्णा, दैट इज अ रियल चैंटिंग, दैट इज कॉल्ड नामाभास चैंटिंग, नॉट अ रियल चैंटिंग। जब वो वही करते 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 हमें भगवान से प्रेम होने लगता है, जी से अटैचमेंट होने लगता है, भगवान के लीलाओं एंड जितने पास टाइम्स वो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। वो मतलब बाहर से देखिएगा कि वो तो भोगी है, लेकिन अंदर से वो चलेगा। इसलिए किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए, कोई भी साधु को हमें जज नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई साधु का फॉल डाउन हो जाता है, कोई साधु का अगर फॉल डाउन हो जाता है, तभी हमें उसे साधु ही समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद से इन द भगवद गीता, तभी हमें साधु के बराबर ही समझना चाहिए उसे, राइट, एज इट इज़ हमें साधु समझना चाहिए। तो अगर किसी का फॉल डाउन भी हो जाता है, किसी का फॉल डाउन हो जाता है, विलम मंगल ठाकुर वो जो थे वो प्रोस्टिट्यूट के साथ संग करते थे, लेकिन वो भाव भक्ति के लेवल पे थे, और चेतन महाप्रभु महाभाव तक भी देने आए हैं। तो हो सकता है कोई भाव भक्ति के लेवल पे हो विलम मंगल ठाकुर जैसा, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें प्रीतिपूर्वक भजन करना चाहिए, चैंट करना चाहिए फॉर सेटिस्फाइड कृष्णा, इसको बोलते हैं भगवान के लिए करना चाहिए प्रीतिपूर्वकम। ददामी बुद्धि योगम, जब आप ऑलवेज इंगेज्ड हो गए, मैं बताया आप कैसे इंगेज्ड होना है, पूरी तरह पूरी अपने एग्जिस्टेंस को आप भगवान के समय लगाना है, प्रीतिपूर्वक भजन करना है, ये भी बता दिया। अब है ते ददामी बुद्धि योगम ताम, तब उस समय ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि? दिव्य ज्ञान हृदय प्रक्षित, दिव्य ज्ञान बुद्धि देता हूँ। भगवान के दो तरह का ज्ञान होता है, एक होता है मर्डेन नॉलेज जो आप भौतिक संसार देखते हो, उस नॉलेज से भगवान को नहीं समझ सकते हो। दिव्य ज्ञान जरूरी है, या तो भगवान के भक्तों की कृपा के थ्रू होगा, या भगवान की कृपा होगा तभी आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा डायरेक्टली। तो फिर वो ददामी बुद्धि एवं, भगवान आपको वो बुद्धि देते हैं, तब ये ना माम उपायंती थे, तब आप भगवान के धाम तक जा सकोगे, गोलोक वृंदावन, वहाँ पे जाने का ये फॉर्मूला है। तो मैंने आपको श्लोका में बेसिकली बताया कि कैसे हम अपने आप को एग्जिस्टेंस को भगवान की सेवा में पूरी तरह लगाना है, पहला। और दूसरा प्रीतिपूर्वकम भजन का मतलब क्या होता है? प्रीति मतलब भोग वांछा, अपने लिए नहीं, फॉर सेटिस्फाइड द राधा एंड कृष्णा, राइट। दिस शुड बी द हायर भाव टू सर्विंग राधा कृष्णा, चैंटिंग एंड ट्राई टू प्रैक्टिसिंग फॉर नवावास एंड ऑल्सो फॉर प्रेम नाम। बिकॉज हम क्यों बोलते हैं प्रेमा भक्ति जहाँ है अवधा विनाश है, प्रेम चाहिए तो बोलते हैं ना। तो दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए। साधु संग इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड साधु संग में, साधु का संग का मतलब क्या होता है? साधु संग मतलब साधक संग, जो अपने इंद्रियां के वेगों को साधता है, रोकता है, दैट इज कॉल्ड साधु। इंद्रियां के वेगों को रोकता है, दैट इज कॉल्ड साधु। ऐसे साधु को हम पहचानें, कैसे पहचानेंगे? श्रीला प्रभुपाद जी के बुक के थ्रू पहचानेंगे, उनके बुक्स को पढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे, हमें बुद्धि अंदर आएगा, कृष्ण से प्रे करेंगे, वैष्णवों का संग लेंगे जो रियल वैष्णव है, नहीं उनका रियल वैष्णव मतलब जो वैष्णव प्राय आभास में नहीं आते हैं, उनका हम संग करेंगे, तब हमारे बुद्धि, हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा, और हम ही भगवान का सेवा कर पाएंगे, और हमारा भी गोल जो है वो पूरा हो जाएगा, भगवान के धाम जाना, राइट। हरे कृष्णा। और जो भी कुछ गलती हुआ हो उसके लिए सॉरी, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस श्लोका विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड मुझे लगा बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।